scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities, focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate-resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help
in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion US, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26.
The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues
from subsumed taxes in the pre-GST 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first started. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayer services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled, or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much-needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development and performance, effective delivery and Jan Kalyan has given the government trust, confidence and blessings of the people to realize whatever it takes, the goal of Vikasit Bharat, with good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker,
I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। What is GDP? GDP, or Gross Domestic Product, is total market value of all final goods and services produced in the country over a period of time, usually 1 year. Increase in GDP or GDP growth rate indicates the overall health of the economy.
कि 21वीं सदी का भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेशन में कमी की वजह से ना पैसे का नुकसान उठाए और ना ही समय गंवाए। What is fiscal deficit? When government's revenues from various sources fall short of its entire expenditure, it has to borrow money to meet the shortfall. The excess of expenditure over receipts is called fiscal deficit. Higher fiscal deficit may result in higher rate of inflation. आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को हमें मिलकर के इसे सिद्ध करना है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो या फिर हमारे फॉरेन पार्टनर्स। आत्मनिर्भर भारत सभी के लिए विन विन संकल्प है। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज छठी बार बजट पेश किया है। सरकार ने हर चुनौती का सामना किया है, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, और उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि देश में रोजगार के अवसर लगातार बढ़े हैं और हम समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल, तो अंतरिम बजट 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया और करीब करीब अगर हम देखें प्रतिबिंब तो ये 1 घंटे का बजट भाषण रहा जिसमें तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। यानी हम ये कहें कि 1 घंटे के अंदर समाहित ये बजट जरूर है, इसे एक छोटी स्पीच ही मानेंगे अगर बाकी बजट से तुलना करें प्रतिबिंब, लेकिन तमाम बड़ी बातें हैं जिनका जिक्र अभी प्रतिबिंब भी कर रहे हैं। और वित्त मंत्री ने जिसका जिक्र किया है, उन्होंने गरीब, महिला और अन्नदाताओं पर बजट में जोर है इस बात का जिक्र किया। साथ ही कहा है कि जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास पर काम कर रही है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया और विशेष जनजातियों के लिए विशेष योजना सरकार की तरफ से लाई गई है। जी हाँ, और उच्च शिक्षा का लगातार उन्होंने अपने बजट भाषण में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के दाखिले उच्च शिक्षा में लगातार बढ़े हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आईआईटी और आईआईएम की संख्या पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है, और साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि वैश्विक में हम आपके सामने लेकर आएंगे जिस बात का जिक्र है वो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और उसी को लेकर जो रोड मैप आगे रखा गया है कहीं ना कहीं वो हमें विकसित राष्ट्र बनने में मदद करेगा। 2030 तक जब हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, इसका कहीं ना कहीं रास्ता तय किया गया है। पिछली बार जब हमने बजट में देखा था, ग्रीन ग्रोथ को लेकर सरकार का काफी ज्यादा फोकस था, क्योंकि जब हम इकोनॉमी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जलवायु के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, विकास के रास्ते पर जलवायु के चिंता करते हुए हमें चलना है, इस पर हमने फोकस देखा था। आखिर किस तरह से ये बजट इस बार अहम साबित हो रहा है, कौन से ऐसे बड़े बड़े कदम हैं जिन पर सरकार का फोकस है, हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात कही गई है कहीं ना कहीं प्रतिबिंब, और जैसा हम लगातार सुबह से चर्चा भी कर रहे थे कि किसान, महिला, युवा, इन पर और जो गरीब हैं इन पर सरकार का बड़ा फोकस रह सकता है, और इसी का जिक्र कहीं ना कहीं हमें बजट में दिखाई भी दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक के प्रयासों से अभी तक की योजनाओं, परियोजनाओं के माध्यम से किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, महिला किस तरीके से उद्यमशीलता बनी है, और उसमें
28% की किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, और जिसका जिक्र हमने शुरुआत में ही किया कि किस तरीके से 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को लगातार सरकार प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रही है। 7 नए IIT खोले गए हैं और इसके साथ ही 7 नए IIM भी बनाए गए हैं। इसके अलावा बजट भाषण में डिजिटल ढांचे के विकास पर भी बात की गई और कहा कि सरकार का जोर लगातार डिजिटल ढांचे के विकास पर है। इसके अलावा जो बड़े कानून बनाए गए हैं उसका जिक्र भी लगातार अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 3 तलाक को ख़त्म किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि DBT के ज़रिए लोगों को 34 लाख करोड़ रुपए सरकार की ओर से दिए गए हैं और लोगों की आमदनी में भी लगातार इजाफा हो रहा है। The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas, and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. बिल्कुल, जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जिक्र भी किया और पिछले बजट में भी हमने देखा था कि अमृत काल एक तरह से विजन जो सरकार आगे लेकर चल रही है, जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे करेंगे तब तक हम विकसित राष्ट्र बनना है, हमें इसकी फाउंडेशन पिछले बजट में ले की जा चुकी है और उसी पथ पर आगे बढ़ने को लेकर ये जो बजट है, इस साल जो अंतरिम बजट पेश किया गया है, वो कहीं ना कहीं एक अहम कड़ी साबित होगा। और वित्त मंत्री ने क्या कुछ हासिल किया पिछले कुछ वर्षों में इस सरकार ने, उसका जिक्र किया, और क्या कुछ हासिल करना चाहती है अगले कुछ वर्षों में, उसका भी रोड मैप सबके सामने रखा। और वित्त मंत्री ने जीएसटी का विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी से एक राष्ट्र और एक बाजार बनाने में सरकार कहीं ना कहीं सफल रही है।
वित्त मंत्री ने लोगों की आमदनी बढ़ने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की आमदनी पिछले कुछ वर्षों में सरकार की योजनाओं परियोजनाओं के माध्यम से बढ़ी है। महंगाई जो है वो काबू में रखने में सरकार कामयाब रही है। सरकार जो है इस कहीं ना कहीं क्षेत्र में सफल रही है और G20 के सफल आयोजन का विशेष तौर पर वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में विशेष तौर पर जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक भारतीय की आकांक्षा को पूरा करने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल, अब बजट पेश करने से पहले inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays so that the social economic transformation is achieved. प्रीति, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जोर वित्त मंत्री का इस पर रहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए क्या कुछ करने वाली है सरकार। बिल्कुल, और जब विकसित भारत की कल्पना सरकार की तरफ से की गई है और इस पर काम जारी है, तो इस बात का जिक्र भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो विकास है वो सर्वसमावेशी है, यानी हर वर्ग के विकास पर सरकार का फोकस है। और कहीं ना कहीं यही बात सामने आज बजट के जरिए भी रखी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि रोजगार के जो मौके हैं वो बढ़ रहे हैं और महंगाई पर जो काबू करने की कवायद है वो भी लगातार जारी है। साथ ही उन्होंने जो हम लगातार बात कर रहे थे प्रतिबिंब टैक्स स्लैब को लेकर, हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव सबसे बाद में किया, लेकिन कोई बदलाव नहीं। हाँ, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर जरूर घोषणा हुई है और उसे 22% तक घटा दिया गया है। तो टैक्स को लेकर भी जो घोषणाएं हैं उन पर भी हम बात करेंगे। विकास दर को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया के मुकाबले जो भारत की विकास दर है वो उसका अनुमान काफी ज्यादा है और जो ये विकास का दौर है वो सरकार के रिफॉर्म्स के जरिए आगे तेज गति से और बढ़ेगा। और इसको लेकर जो तमाम कदम है
सर्वसमावेशी विकास को लेकर जो बात कही है, चाहे वो घर देने की बात हो, बिजली, पानी, सड़क की बात हो, किसानों की बात हो, गरीबों की बात हो, इसे लेकर एक रोड मैप इस बजट के जरिए सामने आया है। पवन गोयनका हमारे साथ जुड़ गए हैं और रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। क्या कुछ लगता है इस बजट को लेकर? पवन गोयनका जी से भी CIA से जुड़ गए हैं। पवन जी, अंतरिम बजट था, बहुत कुछ जो है आशा नहीं थी लोगों की, लेकिन बार बार वित्त मंत्री ने एक बात पर जोर दिया, 2047 तक किस तरह से भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसका रोड मैप है ये अंतरिम बजट। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर मैं कहूं कि इस बजट से एक चीज़ जो मैं लेके जा रहा हूं वो यही है कि ये सरकार का 2047 पर पूरा ध्यान है। हम किस तरह से आज 2024 से 2047 में विकसित भारत बने, और पूरी बजट में अगर आप देखें तो एक कॉन्फिडेंस का बजट इसे मानता हूं मैं, जिसमें कि सरकार ने बताया है कि जो हमने काम अभी तक किया है वो कितना सफल रहा, और उसमें हम संदेह नहीं कर सकते हैं। और जो भी काम अभी आगे जाने वाला है उसमें हम कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं, क्योंकि सब कुछ लाइन में चल रहा है, और उसे हम कैसे आगे बढ़ाएं तेजी से, ताकि भारत विकसित भारत बन सके 2047 तक। तो एक जो कॉन्फिडेंस है इस बजट से सामने आ रहा है। हालांकि ये इंटरिम बजट था, इसलिए हमें कोई नई योजनाओं के बारे में हमें सोचना नहीं था, और कोई भी टैक्सेस कम नहीं हुए हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी नंबर जो उन्होंने दिया वो फिस्कल डेफिसिट का 5.1% नंबर 24-25 में है। ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट है 5.8% से फॉर द करंट ईयर। तो हालांकि ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि यहाँ CII में जो यहाँ हम मौजूद हैं, सभी जितने भी बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस बजट से। बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने उसका एक बात और जिक्र किया, उन्होंने 5.1 का जिक्र तो किया, साथ ही ये कहा कि 4.5 तक लाने का प्रयास भी सरकार करेगी अगले 5 वर्षों में। जी, वो तो लॉन्ग टर्म जो प्लान है वो है ही अपने सामने, लेकिन एटलीस्ट मेरा ये सोचना नहीं था कि एक साल में हम 5.9 जो बजट था पहले उससे हम 5.1 में आ जाएंगे, और ये उन्होंने किया है विदाउट कंप्रोमाइजिंग विथ कैपेक्स। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो CII ने जो पहले भी कहा था और हमने सबने कहा है कि कैपेक्स कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैपेक्स ही हमें आगे बढ़ा रहा है, और उन्होंने कैपेक्स को 11% आगे बढ़ाया है अगले साल के लिए, और 3.4% GDP। So without reducing capex, they are able to get the fiscal deficit down to 5.1%. I think that's a very big achievement, and talks a lot about the tax buoyancy that India has right now in terms of revenues that are happening, and how जितना भी हम खर्च कर रहे हैं सोशल स्कीम्स पे, वो एक्सपेंडिचर काफ़ी सही मायने में हो रहा है, ताकि हम अननेसेसरी उसको एक्सपेंड ना करें, एंड वी पुट द मनी वेयर इट्स गोना मेक अ डिफरेंस टू द सोसाइटी। बिल्कुल पवन जी, तो जिस बात का जिक्र किया गया कि ये अंतरिम बजट है और उसकी सीमा में ही ये जो बजट है वो पेश किया जाएगा, तो आप मान रहे हैं कि अंतरिम बजट की सीमाओं में ही पेश एक बजट है? क्योंकि जब भी बजट होता है और खासकर चुनावी साल होता है तो बात कही जाती है कि लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती है, पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है। उस बारीकी को आप कैसे देखते हैं, कैसे नापते हैं इस बजट को? पवन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, वित्त मंत्री ने जिस बात का जिक्र किया था कि जो अंतरिम बजट है उसकी सीमाओं में ही ये बजट होगा, और हमने देखा भी कि जो बजट रहा वो करीब करीब 1 घंटे का बजट भाषण रहा वित्त मंत्री की तरफ से, और इसमें जो बड़ी बातें हुई हैं उसमें यही कहा गया कि हर भारतीय की आकांक्षा इस बजट के जरिए पूरी हो रही है, और जो सरकार का फोकस है, सरकार का विजन है, वो 2047 यानी 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है, और इसी दिशा में एक रोड मैप लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने जो बातें कही हैं वो बड़ी हाइलाइट्स आप देख पा रहे हैं। 2 करोड़ और आवास को 5 साल में पूरा किया जाएगा, इस बात का आश्वासन दिया गया है। ऊर्जा संरक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा, इसे लेकर जो तमाम प्रतिबद्धताएं हैं भारत की तरफ से वो पूरी की जाएंगी, और GST से एक राष्ट्र एक बाजार
बना है भारत के अंदर। इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कही गई और ये बात कही गई कि दुनिया इसे याद रखेगी। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट को लेकर सरकार लगातार जोर दे रही है और इसी राह पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ा भी जाएगा और स्किल लगातार लोगों की बढ़ाई जाएगी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा को लेकर और खासकर ग्रीन एनर्जी को लेकर, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, इसकी बहुत बड़ा रोड मैप सामने आया था पिछले बजट में। आयुष्मान भारत योजना से काफी लाभ हुआ है और हमने देखा है कि हेल्थ सेक्टर को लेकर जो लगातार फोकस है और इसके एक्सपेंडिचर को लगातार जो बढ़ाया जा रहा है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से मजबूत किया जा रहा है, उसी बात को दोहराया गया है वित्त मंत्री की तरफ से इस बजट में भी। आंगनबाड़ी कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर भी तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो सकें। दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है और विनियामक तंत्र को विकसित किया जाएगा। इस बात पर भी फोकस इस बजट में रखा गया है। और महिलाओं का जिक्र लगातार करते रहीं अपनी बजट भाषण में। उद्यमशीलता किस तरीके से 28% तक महिलाओं की बढ़ी है उसका जिक्र किया। बिल्कुल प्रतिबिंब। और पवन जी जुड़ गए हैं, इस बात का भी हम जिक्र कर लेते हैं। जो उद्यमशीलता को लेकर आपने महिलाओं की बात कही कि 28% तक बढ़ी है। पवन जी, आप पहले आवाज आप तक नहीं आ रही थी, मैं ये जानना चाह रही थी कि वित्त मंत्री ने पहले इस बात का जिक्र किया कि जो अंतरिम बजट की सीमाएं हैं उसी दायरे में ये बजट लाया जाएगा। आप मानते हैं कि उसी लिमिटेशंस में ये बजट है? क्योंकि जब खासकर चुनाव का साल होता है तो ये माना जाता है कि पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, लेकिन आप मानते हैं उसी दायरे में सरकार कहीं ना कहीं कदम आगे बढ़ा रही है? 100%। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें बजट में कोई भी पॉपुलिस्ट मेजर जैसे हम सुनते हैं इलेक्शन ईयर में वो नहीं थे। जो भी स्कीम्स बताई गई वो पुरानी स्कीम्स को आगे लाने की बात हुई है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये सरकार ने बजट बनाया है वोट लेने के लिए। और काफ़ी अनाउंसमेंट्स हुए हैं। हालांकि इंटरिम बजट था लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें कही गई हैं वित्त मंत्री के द्वारा कि जिससे हमें एक कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है कि हम जब जुलाई में बजट सुनेंगे पूरा बजट तो उसमें काफ़ी कुछ एक रोड मैप जो उन्होंने बताया, ब्लूप्रिंट या वाइट पेपर जो बताया उन्होंने, विकसित भारत 2047 के बारे में सुनेंगे। और गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों में काफ़ी कुछ सुना है इंडस्ट्री के द्वारा कि क्या करना है, कहाँ करना है। कई स्कीम्स चल रही हैं जो बजट में कुछ आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, लेकिन उन सब के द्वारा जो हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि स्पेस फॉर एग्जांपल जो अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंतरिक्ष के लिए, उसमें भी काफ़ी कुछ काम हो रहा है और उसको भी हम कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे विकसित भारत में, ये देखा जा रहा है टेक्नोलॉजी के द्वारा एज वेल एज इकोनॉमी के द्वारा। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम शायद जुलाई में सुनेंगे, जो कि इंटरिम बजट में छोटा स्पीच था केवल 1 घंटे का, इसमें नहीं सुन पाए, लेकिन हम वो सुनेंगे जुलाई में। और मुझे पूरा विश्वास है कि जुलाई बजट आएगा वो बजट हमारे लिए अगले 5 साल की एक ब्लूप्रिंट होगी और उससे हम काफ़ी आगे बढ़ेंगे 5 सालों में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बजट पर जो चर्चा है वो आगे भी लगातार संसद टीवी पर लगातार जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम राज्यसभा की कार्यवाही के लिए आइए उसका सीधा प्रसारण देखते हैं। What is non-tax revenue? These are revenues generated from various services like medical services, electricity and transport provided by the government. All receipts and expenditure from railways are routed through the consolidated fund. The most important receipts under this head are interest payments.
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Birthday greetings, honorable members. I am pleased to extend greetings to honorable members of Parliament, Shri Parimal Nathwani, Shri Ajit Kumar Bhuwan, Shri V. Vijendra Prasad on their birthdays today. Shri Nathwani, an industrialist, is currently in his third term and has been in Rajya Sabha since June 2008. An ardent Lord Krishna devotee, he is known for his humility and disarming modesty. He is also the president of Gujarat State Football Association. Shri Parimal is married to Srimati Varsha Nathwani and has a son, Dhanraj Nathwani. Shri Ajit Kumar Bhuyan has been a member of this August House since April 2020. He is a prolific Assamese author who has written books focusing on Assam's society and policies. His diverse career includes roles as a journalist, editor for prominent Assamese publications, and involvement in various social and human rights organizations. Shri V. Vijendra Prasad, an acknowledged scriptwriter and renowned director, has been a nominated member of Rajya Sabha since July 2022. The honorable member has impactfully presented insights into the various facets of the entertainment industry. He was married to late Srimati Raja Nandini and has a son, S.S. Rajamouli. Honorable members, on your and my own behalf, I wish them a long, healthy, and happy life and extend greetings to their family members and friends. Honorable members, the interim Union Budget 2024-25, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi of the estimated receipts and expenditure of the government for the year 2024-25. Fiscal Policy Statements 2024-25, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table under subsection 1 of section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003, a copy each in English and Hindi of the following papers. 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Thank you. Honorable members, I have to inform honorable members that panel of vice chairpersons has been reconstituted with the following members. Srimati Ramila Ben Bechar Bhai Bara, Srimati Seema Dwivedi, Dr. Ami Yaznik, Srimati Mosam Noor, Sri Kanak Medla Ravindra Kumar, Sri Prabhakar Reddy Vemi Reddy, Professor Manoj Kumar Jha, Lieutenant General Dr. D.P. Vats Sevanivrit. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 2nd February 2024.
The goods and services tax subsumes both central and state level taxation. The entire element of tax borne by a good or a service will be represented by the GST paid on it. At present, GST is imposed in 4 slabs of 5%, 12%, 18% and 28%. बजट विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज छठी बार बजट पेश कर दिया है। सरकार ने हर चुनौती का सामना किया है, उनका इस बात पर जोर रहा। अपने पूरे बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि देश में रोजगार के अवसर लगातार बढ़े हैं और साथ ही समावेशी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बिल्कुल, और इसके अलावा गरीब, महिला और अन्नदाताओं पर सरकार का जोर है। ये बात भी बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार सबका साथ सबका विकास पर ही काम कर रही है और जो महंगाई है उसे काबू करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार रंग ला रही हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया है और साथ ही अलग अलग वर्ग के लिए विशेष योजनाओं का भी जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि आने वाले समय में सरकार आधारभूत ढांचे पर 11% से ज़्यादा खर्च करने वाली है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सौरभ चंद्रा, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं पेट्रोलियम मंत्रालय से। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके का अंतरिम बजट आप पाते हैं इसे? मैं इस अंतरिम बजट को एक बहुत बड़ी चुनौती के लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव बजट मान रहा हूँ। मुझे जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ लगी वो इसमें जो ये नया स्लोगन दिया गया है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। और अनुसंधान के लिए जो 1 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं जो इंटरेस्ट फ्री होंगे, वो जो चीज़ है वो इस देश को बदल सकती है। क्योंकि देश में रोज़गार देने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना ज़रूरी है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनुसंधान बहुत आवश्यक है आज की तारीख में। इसी तरह से जो अनुसंधान के लिए पैसा डिफेंस में लगाया जाएगा वो मेरी नज़र में बहुत उचित है, बहुत सामायिक है। और मुझे ऑडियो मिल रहा है। बिल्कुल, आपके पास हम लौटेंगे। आर विनेश हमारे साथ CII प्रेसिडेंट जुड़ गए हैं, फिलहाल हम उनका रुख करते हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस अंतरिम बजट पर। आर विनेश जी, शुक्रिया संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। आपकी बजट पर पहली प्रतिक्रिया। Welcome to Sunset TV, R. Videsh ji. How do you see this interim budget 2024? सौरभ जी, आवाज आ रही है? मैं बोल रहा हूं प्रतिबिंब शर्मा स्टूडियो से। आपने कहा कि ये बहुत ही बेहतरीन बजट है क्योंकि अनुसंधान पर जोर दिया गया है और अनुसंधान के लिए एक विशेष कोष की भी घोषणा की गई है।
और आपने कहा कि अनुसंधान से ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। अगर अनुसंधान की बात करें तो ये सरकार नई शिक्षा नीति की भी घोषणा कर चुकी है, उसमें भी अनुसंधान रिसर्च पर जोर दिया गया है और कैसे देश को अनुसंधान के बल पर विकसित राष्ट्र बनाया जाए उस पर लगातार जोर है। तो क्या उसका ही विस्तार आप मानते हैं, जिस तरीके की टैगलाइन आज वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान दी है? पहले आया सौरभ जी। तो बिल्कुल कोलैबोरेशन बहुत जरूरी जी। और ये जो 1 लाख करोड़ ब्याज मुक्त दिया गया है, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो कोलैबोरेशन है इंडस्ट्री एकेडमिया, ये आगे बढ़ेगा और इसी आधार पर ये देश विकसित भारत की तरफ बढ़ेगा। जो प्राथमिकताएं दी गई हैं, डीप टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों प्राथमिकताओं के लिए ये आवश्यक है। और जो कल्पना है अमृतकाल की और 2047 तक विकसित भारत होने की, उसको पूर्ण करने में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। जी, लेकिन अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया और उस पर भी जोर देती हुई नजर आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 11% इस पर खर्च किया जाएगा, आधारभूत ढांचे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। वो कितना बड़ा बदलाव ला सकता है विकसित भारत बनाने की प्रक्रिया में? स्ट्रक्चर तो एक आधारभूत चीज है, उस पे जो खर्च हो रहा है उसके तो सामने परिणाम आ ही रहे हैं। और जो 3 नए रेलवे कॉरिडोर कहे गए हैं, उनसे तो बहुत फर्क आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े बॉटलनेक थे और इन बॉटलनेक्स को अब ओवरकम किया जाएगा सीमेंट के लिए, मिनरल्स के लिए, और जहां बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है उसके लिए। तो जहां एक पैसेंजर्स का भी ध्यान रखा गया है, वहां पे इन्होंने इस पे भी ध्यान रखा है कि जो कमोडिटीज हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन को भी आसान किया जाए। तो ये इंटरिम बजट है और उसको देखते हुए, इंटरिम बजट की अपनी सीमाएं होती हैं, उसको देखते हुए मेरी नज़र में ये अमृतकाल की तरफ बढ़ने में एक बहुत साकार कदम है। बिल्कुल, हमारे साथ आर विनेश जी भी जुड़े हुए हैं, CII प्रेसिडेंट। मिस्टर आर विनेश, वेलकम टू सनसेट टीवी। Your insights into the government economic priorities and financial strategies through Budget 2024. बिल्कुल, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आर विनेश तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। हम कुछ ही पलों में एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, सौरभ जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ सौरभ जी, तमाम बड़ी बातें आपने बताई हैं बजट को लेकर। इस दौरान मैं ये समझना चाहूँगी कि बजट की एनालिसिस करना एक, मैं कहूँ, हाईली एंटिसिपेटेड मोमेंट होता है हमारे देश में, अगर इसकी बात की जाए। जैसा हमने देखा पिछली बार बजट में था कि भारत एट 100 का जो विजन है वो लेकर चला जाएगा। आज भी बार बार वित्त मंत्री ने जिस बात का जिक्र किया वो ये थी कि विकसित राष्ट्र बनाना है हमें 2047 तक। पिछली बार भी हमने देखा था कि ग्रीन ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा फोकस था, क्योंकि एक समय, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि तमाम जो देश हैं, खासकर यूरोपियन कंट्रीज हैं, हम एक तरह से ग्रीन प्रोडक्ट्स ही एक्सपोर्ट कर पाएंगे। यानी बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया के सामने चैलेंजेस हैं, उनके अनुसार हमें ट्रांसफॉर्म भी होते रहना है अपने डेवलपमेंट को लेकर। तो वो विजन क्या कहीं आज दिखाई दिया बजट में? वो विजन 3 प्रोग्राम से मुझे नजर आ रही है। एक तो जो वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात कही गई है शोर विंड के लिए, दूसरा जो कोल गैसिफिकेशन की बात कही गई है, और तीसरा जो कंप्रेस्ड बायोगैस को ये ब्लेंड करेंगे नेचुरल गैस में।
तो ये तीनों उस दिशा में कदम है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि सिर्फ इंडस्ट्री लेवल पर ही नहीं, हर आम आदमी को भी उस हिसाब से अपना व्यवहार, बिहेवियरल चेंज करना होगा। अगर हम ग्रीन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लगातार विकास की बात कर रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं, उसे लेकर आपको क्या लगता है? क्या वही रोड मैप है, उसी पर एक बार फिर से फोकस है, वही बातें दोहराई गई हैं? नहीं, नई बातें भी हैं। जी। और जो बायोप्लास्टिक्स है, जो कृषि क्षेत्र में बायोडिग्रेडेबल इनपुट्स की बात कही गई है, ये तो एक अलग किस्म के कदम है। और ये नई चीज़ है। बायोप्लास्टिक्स तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लास्टिक्स ने जो समस्या खड़ी की हुई है उससे निपटने के लिए ये भी उसमें एक एलिमेंट है। बाकी एलिमेंट उसको रिसाइकिल करना है, रीयूज करना है, वो तो है ही। आपने अभी बात की कि किस तरीके से अनुसंधान को लेकर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात सरकार ने इस बजट में की है। तो एक ब्रेन ड्रेन की समस्या से हम लोग जो हैं लगातार दो चार होते रहते हैं, भारत देश दो चार होता रहता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ पर शोध परक शिक्षा दी जाएगी तो वो ब्रेन ड्रेन की जो समस्या से दो चार होना पड़ता है हमें, वो रुक पाएगी क्या? एक तो हमें जो हमारे लोग बाहर चले गए उन्हें वापस लाने के लिए कुछ आकर्षक पैकेज देने पड़ेंगे, जो कि कई आईआईटीज इस समय कोशिश कर रही हैं। और इसके अलावा जो स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दिया गया है, उससे भी ये प्रबल संभावना है कि लोग बाहर जाने के बजाय यहीं पर अपने स्टार्टअप शुरू करें, और जिस तरह की वो उम्मीदें उन्होंने विदेश में होती हैं उसी तरह की उम्मीदें यहाँ भी जागृत हो जाएंगी। इसके अलावा जो एक डोमेस्टिक लिस्टिंग ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज चल रही है, वो बजट के बाहर की बात है, मगर उससे भी बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ की तमाम कंपनियां जो बाहर जाके लिस्ट होती हैं वो अगर यहीं हो जाएं तो बहुत अच्छा है, और जिससे फायदा यहीं मिले। एक और घोषणा की गई है जी, एक और सौरभ जी इसमें घोषणा की गई है 7 नए आईआईटी और 7 नए आईआईएम भी बनाए जाएंगे। तो क्या इसी कड़ी से जोड़कर देखा जाए? आपने कहा आईआईटीज प्रयास भी कर रहे हैं। आईआईटीज की जो रिसर्च है उसको इंडस्ट्री से जोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए जो भी आवश्यक जरूरतें हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। कुछ बजट के माध्यम से होंगी, कुछ बाहर से होंगी, दोनों मिला के ही होंगी। मगर इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। जितने आपने स्टार्टअप्स विदेश में देखे होंगे, गूगल का ही उदाहरण ले लें, वो सब स्टैनफोर्ड से शुरू हुए और इस तरह की यूनिवर्सिटी से शुरू हुए। तो विदेश की जो यूनिवर्सिटीज जिस तरह से आगे बढ़ाती हैं अनुसंधान को, उसी तरह से हमारी आईआईटीज और ये जो बाकी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इनको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। सौरभ जी, जब टेक सेवी हम यूथ की बात करें, उसके लिए आप क्या कुछ खास देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि गोल्डन ईरा होगा, क्योंकि जो कॉर्पस है वो 1 लाख करोड़ का स्टैब्लिश किया जाएगा, वो भी 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किए जाएंगे उसके जरिए। तो एक तरह से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग होगी, ये लो या फिर निल इंटरेस्ट रेट के साथ। इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये एक बहुत साकार कदम है। बहुत इसी कदम से इस देश में अनुसंधान को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलना चाहिए। और इसी नज़रिए से मेरे ख्याल में जो जितने आईआईटीज हैं, इनको अपना थोड़ा करिकुलम भी बदलना चाहिए, ताकि शिक्षा के अलावा वो रिसर्च की तरफ भी अंडर ग्रेजुएट लेवल और उसके बाद मास्टर्स लेवल पे ध्यान दिया जाए। वैसे भी देखा अब ये जा रहा है कि आईआईटीज का जो कॉम्पोजिशन है वो बदलता जा रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम में आ रहे हैं बनस्पत की अंडर ग्रेजुएट्स। क्लीन एनर्जी को लेकर भी वित्त मंत्री ने बहुत सारी बातें कही हैं, और उन्होंने ज़्यादातर क्लीन एनर्जी का जब जिक्र किया अपने बजटीय भाषण में,
उसमें उन्होंने बताया कि क्लीन एनर्जी को लेकर क्या कुछ सरकार ने अभी तक किया है, उनका जोर इस पर था, और क्या कुछ सरकार करने वाली है, क्या टारगेट सेट किया है, उन्होंने इसको भी स्पष्ट किया। तो जिस गति से क्लीन एनर्जी की और हम लोग काम कर रहे हैं, या फिर ये सरकार काम कर रही है, क्या वो गति पर्याप्त है जो गोल सेट किया है सरकार ने उसको पाने के लिए? रूफटॉप सोलर एक और उदाहरण है। तो आपने विंड और रूफटॉप सोलर के लिए तो बढ़ावा दिया ही है। इसके अलावा कोल गैसिफिकेशन हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन में बहुत कंपनी सामने आई हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अनुसंधान चाहिए। तो सरकार ने अपनी तरफ से तो इसके लिए जो इंसेंटिव्स देने हैं वो दिए हैं। अब इसको इंडस्ट्री को और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को आगे ले जाना है। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता इसके लिए जन भागीदारी तय करना बेहद आवश्यक है? जन भागीदारी सोलराइजेशन प्रोग्राम के लिए तो जरूरी है। रूफटॉप सोलर के लिए लोगों को सामने आना पड़ेगा। उसके लिए जो इसकी प्रोसीजर्स हैं वो काफी सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए हम देखते हैं कि विदेश से इसके कंपोनेंट हमें आयात करने पड़ते हैं और वो खासे महंगे पड़ते हैं। क्या इसका प्रोडक्शन भारत में शुरू हो जाए? क्योंकि एमएसएमई सेक्टर के बहुत सारे विशेषज्ञों से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमें सहयोग करे, समर्थन दे, तो वो ये कंपोनेंट्स देश में ही तैयार कर सकते हैं। वो थोड़े से सस्ते होंगे और उससे बेहतर भी होंगे। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहली चीज तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, पहली चीज। दूसरी चीज जो होती है वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट होता है। वो भले ही रेगुलेटरी एनवायरनमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं सोलराइजेशन के लिए, इसमें काफ़ी कुछ इंपोर्ट हो रहा है चाइना से। और उसका जो मुख्य कारण वो यही है कि उनकी लागत कम है। तो यहाँ कोशिश ये करना कि लागत से ही कंपेटिटिवनेस आएगी। ये तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़, आजकल बाय एंड लार्ज हर जगह असेंबली होती है। हर जगह जगह से ये पार्ट्स आते हैं और असेंबली होती है। आज जो मोबाइल फ़ोन देखेंगे वो भी आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक असेंबली होती है। तो इस देश में वैल्यू एडिशन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि इस देश में जो हो वो वैल्यू एडिशन कितनी हो। वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स ज़रूरी है। बिल्कुल। थोड़ा सा अगर मैं कनेक्टिविटी को लेकर बात करूं तो वित्त मंत्री ने जिस बात का जिक्र किया, उन्होंने एयरपोर्ट्स को लेकर कहा कि दुगने हो गए हैं। 149 संख्या का जिक्र उन्होंने किया, 149। और जो कनेक्टिविटी रोल आउट की गई, खासकर टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ की अगर बात करें, वो उसका दायरा काफ़ी बढ़ाया जा रहा है। और जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं और नए एयरपोर्ट्स बनाने का काम है वो भी तेज गति से आगे बढ़ता रहेगा। तो कनेक्टिविटी को लेकर ये जो उड़ान स्कीम के अंतर्गत फोकस है, इसका बहुत सारे सेक्टर्स पर अलग अलग तरह से असर पड़ेगा। और खास एक टूरिज्म भी उसमें से एक है। और पोर्ट कनेक्टिविटी और खासकर लक्षद्वीप का जिक्र करते हुए भी वित्त मंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि हम पोर्ट्स की जो कनेक्टिविटी है उसे भी बढ़ाएंगे। तो कनेक्टिविटी के इन दोनों आयामों को आप कैसे देख रहे हैं? कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक है कि हमारे जो एयरलाइंस हैं, इस समय मुख्यतः 2 एयरलाइंस बची हैं। कुछ हद तक आकाश और स्पाइस जेट भी हैं, बट इस समय जो भी है वो एयर इंडिया, विस्तारा और आपकी दूसरी तरफ इंडिगो बची है। और इन्होंने जिस तरह से प्लेन्स ऑर्डर किए हैं उसी से लग रहा है कि इन्हें बहुत उम्मीद है कि डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक बहुत बढ़ेगा। तो कनेक्टिविटी तो ज़रूरी है, क्योंकि जो मुझे लग रहा है इस समय काफ़ी फोकस रिलीजियस टूरिज्म पे है। जिस तरह से अयोध्या में लोग जा रहे हैं, जिस तरह से काशी में लोग जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, उसी से लग रहा है कि टूरिज्म वो बढ़ेगा। उसके लिए ये जो डोमेस्टिक कनेक्टिविटी है ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ेंगी लोग ज़्यादा इस ट्रैवल करेंगे। बिल्कुल। तो ये फोकस तो ठीक है। बिल्कुल।
बिल्कुल शुक्रिया सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो बजट एनालिसिस है वो अपने शब्दों में हम तक पहुंचाने के लिए। और अंतरिम बजट के बाद अब रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरिम बजट पर क्या प्रतिक्रिया दी है। निर्मला सीतारमण जी ने आज जो इंटरिम बजट पेश किया, ये फुल फ्लेज बजट नहीं है इंटरिम बजट, लेकिन इंटरिम बजट जो भी उन्होंने प्रस्तुत किया है वो बहुत ही बहुत ही उत्साहवर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ। इस इंटरिम बजट के कारण जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुँच। जी हाँ, राजनाथ सिंह स्पष्ट करते हुए कि जिस तरीके का अंतरिम बजट ये पेश किया गया है, लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था का साइज और ज़्यादा बढ़ेगा और वैश्विक स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था प्रतिमान स्थापित करेगी। बिल्कुल, तो बजट पर जो प्रतिक्रियाएं हैं और खासकर इसका जो एनालिसिस है, इसका जो विश्लेषण है वो संसद टीवी पर लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। What is Finance Bill? It contains the government's proposals for levying new taxes and modifying the existing tax structure or even continuing the existing one beyond the period approved by Parliament. It is submitted to Parliament along with the budget. What is contingency fund? This fund is an imprest that is placed at the President's disposal. It is used by the government to incur urgent and unforeseen expenditure. Parliamentary approval for expenditure is taken after it is spent and an equivalent amount from the consolidated fund is recouped to the fund. Constituted by the government under Article 267 of the Constitution of India. What is Consolidated Fund? The Consolidated Fund is made up of all revenues and loans raised by the government. It also includes receipts from recoveries of loans granted by it. All government expenses are paid out of the Consolidated Fund. No amount can be withdrawn from this fund without Parliament's approval. कि आज मेक इन इंडिया ये नारा नहीं है, ये मेक इन इंडिया ये सिर्फ निमंत्रण नहीं है,
मेक इन इंडिया ये हम सबकी जिम्मेवारी है और इसलिए ये विश्व को भारत के टैलेंट की पहचान का अवसर बनना चाहिए। What is direct tax? These are taxes where the burden falls on the person on whom it is levied. These are largely taxes on income or wealth. Income tax on corporates and individuals and securities transaction tax are direct taxes. कि 21वीं सदी का भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेशन में कमी की वजह से ना पैसे का नुकसान उठाए और ना ही समय गंवाए। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जो अंतरिम बजट पर केंद्रित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज छठी बार बजट पेश किया और उन्होंने कई महत्वपूर्ण संकेत इस बजट के द्वारा किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर चुनौती का सामना किया है। जाहिर सी बात है, पिछले 10 सालों में सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है, कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। इसका उल्लेख भी वित्त मंत्री जी ने अपने अंतरिम बजट भाषण में किया। देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार 2047 को सामने रखकर देश का विकास करना चाहती है। समावेशी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गरीब, महिला और अन्नदाता पर सरकार का फोकस रहा है। सरकार ने गांव, गरीब किसान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इसका उल्लेख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया है। इस तरह की तमाम विकास उन्मुखी योजनाओं का निर्मला सीतारमण ने बजट के जरिए बताया कि किस प्रकार सरकार ने बीते 10 सालों में अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है। साथ ही भविष्य का जो रोड मैप है वो क्या है, उसका संकेत भी
अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण जी ने दिया। हालांकि ये अंतरिम बजट है, इसलिए सरकार की अपनी सीमा होती है इस अंतरिम बजट में। आइए सुनते हैं निर्मला सीतारमण जी ने अपने अंतरिम बजट भाषण में क्या कुछ खास कहा। Momentum for Nari Shakti, the empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. जाहिर सी बात है, निर्मला सीतारमण जी ने बताया किस प्रकार से नारी शक्ति के लिए सरकार का बीते सालों में फोकस रहा है और आगे किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार क्या कुछ करने वाली है। जाहिर तौर पे इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक सकारात्मक संकेत, देश की अर्थव्यवस्था में इनकम टैक्स का जो योगदान होना चाहिए वो बड़ा है। इस तरह के सामने आए दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के एसोसिएट प्रोफेसर प्रियदर्शी दास जी। प्रियदर्शी दास जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। जाहिर तौर पे ये सरकार का अंतरिम बजट, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? खासतौर से निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा कि पिछली कई चुनौतियों का सामना करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ देश की अर्थव्यवस्था को गति सरकार ने दी है। कैसे देखते हैं आप इसको? अगर आप देखेंगे कोई भी इंटरिम बजट का जो सीमा है, जो आपने पहले से बताया है, उसके दायरे में अगर आप देखेंगे बजट काफी हद तक अच्छा रहा है। उन्होंने खाली अपना जो 10 साल में जो प्रगति किए हैं देश का, उसका कुछ आंकड़ा प्रेजेंट करने के साथ साथ ये भी देश को कि क्या हम आगे किस तरह का विकसित राष्ट्र बनाएंगे। बिल्कुल, विकसित राष्ट्र की जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है। इसे विस्तार से मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक मैं कमेंट एसोचैम के चेयरमैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय सिंह जी। अजय जी, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस अंतरिम बजट को लेकर जो अपेक्षा थी, जो क्या संदेश है इस अंतरिम बजट का, आप कैसे देखते हैं सरकार की घोषणाओं को, सरकार की योजनाओं को, सरकार के संकेतों को? जी, जाहिर तौर पे हम अजय सिंह जी से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रियदर्शी दी, विकसित भारत का बजट, भविष्य के भारत का बजट, नए भारत का बजट, क्या नहीं, आप अगर देखेंगे, जैसे मैं बोल रहा था कि ये गवर्नमेंट बजट ने खाली एक स्कोर कार्ड प्रेजेंट नहीं किया है, वो आगे का जो विकसित राष्ट्र जो होगा 2047 में जो मिशन है, उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या रोल है, और हम यूथ को कैसे एम्पावर करें, उनको एंटरटेनमेंट बेस्ड अप्रोच से हटके उनको शिक्षा के माध्यम से, स्किल के माध्यम से कैसे हम उनको एम्पावर करें। और उसमें वो डिजिटलाइजेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किए हैं। जैसे आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको कैसे एक नया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करके जो वित्त मंत्री ने बताया है, वो अपने आप में एक दिशा दिखाता है, इंडिकेट करता है कि कंट्री को किस तरह तैयारी करना है एक विकसित राष्ट्र को बनाने के लिए। जो
प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको आगे सस्टेन करने के लिए जी जो संस्थाएं होना जरूरी है। उन्होंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिया कि कितने नए IITs आए हैं, 390 करके विश्वविद्यालय आए हैं। ये शिक्षा है जो और रिसर्च और डेवलपमेंट है, ये सब देश को हमारा जो प्रगति का जो स्तर रहा है, जो अभी जो मोमेंटम बना है उसको आगे रख सकते हैं। तो ये एक पहलू है। दूसरा है कि जो लोगों का जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जैसे आपने किसान का सोच लीजिए और वुमेन का सोच लीजिए, यूथ का देख लीजिए, सबका जो गवर्नमेंट ने जो जो स्कीम लिए हैं पिछले 2 टर्म में, वो सबको आगे बढ़ाने के लिए उनका एलोकेशन भी बढ़ाए हैं और उनको कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाए उसका भी जिक्र वित्त मंत्री ने की है। तो मुझे लग रहा है कि एक कुल मिला के एक पॉलिसी विजन है जो विकसित राष्ट्र को आगे इंडिया को विकसित बनाने में 2047 में एक रोड मैप जैसा गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। जी हमारे साथ ब्रिजेश जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। और मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, इस बजट को लेकर, अंतरिम बजट है, हालांकि ये पूर्ण बजट नहीं है, लेकिन क्या कुछ कहता है, क्या संकेत देता है ये अंतरिम बजट? महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों,